अमरेली लेटरकांड मामले में जेल से रिहा हुए मनीष वघासिया समेत आरोपियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर आरोप लगाए हैं। जसवंतगढ़ गामनो सरपंच हतो। मने आ कांडमां संपूर्ण फसाववामां आव्यो छे अने मैं જ્યારે જેલ બહાર નીકળ્યા ત્યારે મેં કીધું હતું કે હું પુરાવા સાથે આપની સમક્ષ રજૂ થઈશ, પુરાવા સાથે રજૂ થઈશ। આ લોકોના કેટલો ત્રાસ, કેટલો ટોર્ચર, એની સંપૂર્ણ વિગત, સંપૂર્ણ કાગળો સાથે, સરકારી દસ્તાવેજ સાથે અને એની સાથે આપની સમક્ષ અત્યારે રજૂ થાઉં છું। કિશોરભાઈ કાનપરિયાના લેટર, કિશોરભાઈ કાનપરિયાની તાલુકા પંચાયતના બુક, તાલુકા પંચાયતની ઠરાવ એની કોપી છે। કિશોરભાઈ કાનપરિયા તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય ખંભાળિયા સીટના છે। એમની ગ્રાન્ટો ફેરવી આ સત્તાવાર લેટર સાથેના વિષય છે। એમની ગ્રાન્ટ વિઠ્ઠલપુર ગામેથી હુકમ થઈ આવેલો મોણપુર ગામે ગયેલી છે। 3,75,000ની ગ્રાન્ટ મોણપુર ગામે ટ્રાન્સફર થઈ છે। વિઠ્ઠલપુર ગામેથી ગ્રાન્ટ પીઠવાજાળ ગામે સ્ટ્રીટ લાઇટની ટ્રાન્સફર થઈ છે। વિઠ્ઠલપુર ગામેથી લાલાવદર ગામે ટોયલેટ બ્લોકની 3 લાખની ગ્રાન્ટ ટ્રાન્સફર થઈ છે। આ બધા જ સત્તાવાર કાગળો, સત્તાવાર તાલુકા પંચાયતની સાઇન, તાલુકા પ્રમુખની સાઇન, તાલુકા વિકાસ અધિકારીની સાઇન, ડીડીઓ સાહેબની સાઇન। ભ્રષ્ટાચાર માટે આ લોકોએ આખી સિન્ડિકેટ રચીને અને કામ કરે છે અને એને માટે એની નજીકની ટીમ આખી જે કાર્યરત થઈ છે એનો બીજો પુરાવો લેટરમાં લખ્યો છે। લેટર મેં પૂરો વાંચ્યો નહોતો, છતાં બહાર નીકળ્યા પછી મેં બધું આખું જોયું। એમાં જાણ્યું કે એમાં લખેલું છે કે કૌશિકભાઈ આખા જિલ્લાનો વહીવટ કરે છે। આ એનો પુરાવો આપું છું। કૌશિકભાઈ માત્ર ને માત્ર અમરેલી તાલુકાના ધારાસભ્ય છે। આ જાફરાબાદ એની ગ્રાન્ટ આપતો લેટર છે, આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું। જાફરાબાદમાં અને ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાને એ દરખાસ્ત કરે છે। જાફરાબાદ એ અમરેલી તાલુકાનું નથી। આ તમારી સામે પુરાવા સાથે રજૂ કરું છું। મને કોઈ પણ સંજોગોએ સસ્પેન્ડ કરવા માટે કૌશિકભાઈ વેકરિયા અને એમની ટીમ તૈયાર હતી। આ એનો બીજો પુરાવો છે। આટલા 21માં મારી ફરિયાદ હતી, છતાં કામ નથી થયું। 4/1/2025ના મને નોટિસ આપવામાં આવે છે અને 8/1/2025 મને સસ્પેન્ડનો ઓર્ડર મળી જાય છે। લેટર કાંડને લઈને અમને કોર્ટની અંદર પૂછવામાં જ નથી આવ્યું। અમે એસપી સાહેબની સામે જ્યારે રજૂ કર્યા ત્યારે અમને સામાન્ય પૂછપરછ થઈ હતી, વિશેષ કાંઈ પૂછપરછ થઈ નહોતી। પરંતુ આ વિષય સાથે મને કોઈ નિસ્બત કે મેં આપને સમક્ષ કીધું કે ભાઈ સોશિયલ મીડિયામાં કૌશિકભાઈએ લેટર જાહેર કરેલો છે રાઘવજી પટેલનો, ખેડૂતોને અમે આવતા મહિનામાં આમ આપશું। તો આ જિલ્લાને અન્યાય થયો છે, ખેડૂતો સાથે અન્યાય થયો છે, તો એ પણ સોશિયલ મીડિયાનો જ વિષય છે ને। તો એમની પાસે ઉપર પણ ફરિયાદ થવી જોઈએ। એમની જગ્યાએ અમારી ઉપર ફરિયાદ કેમ? हमारी जिंदगी में कहानियों की क्या अहमियत होती है ये हम सभी बखूबी जानते हैं। बचपन से ही कहानियों के जरिए हमें नए नए लेसन सिखाए जाते हैं, नई नई स्टोरी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम वो आदत छोड़ देते हैं। जबकि बचपन में जो बड़े से बड़े लेसन हमने सीखे वो बुक्स के जरिए ही सीखे थे, कहानियों के जरिए ही सीखे थे। फिर न जाने क्यों उम्र के साथ में हम वो आदत छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग पुस्तकों को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं उन लोगों के लिए एक खुश खबर है कि वडोदरा में भी अब एक पुस्तक विमोचन हुआ है। ये पुस्तक क्यों खास है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन वडोदरा के सिद्धार्थ मनियार और उनके साथ में रवि इला भट्ट द्वारा 2 पुस्तकों का लॉन्च किया गया है।
पहले हम बात करेंगे सिद्धार्थ मनियार जी से और उनसे जानेंगे उनकी जो किताब है अंधारी रात नी एक बात, ये किताब क्यों लिखी गई, इसमें क्या कहानी है जो आपको कुछ सिखा जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, उनसे बात करते हैं इस किताब के बारे में। आपकी किताब का जो शीर्षक है अंधारी रात नी एक बात, तो किस स्टोरी पर है ये, क्या कहानी है इसकी? मेरी जो किताब है अंधारी रात नी एक बात, वो किताब के अंदर 17 अलग अलग स्टोरीज हैं, बेस्ड हैं रूटीन लाइफ में जो लोगों के साथ घटनाएं बनती हैं। जैसे माता पिता के साथ कोई घटना बन गई, जैसे दोस्तों के बीच में कोई बात हो गई, पुराने दोस्त मिल गए, कोई नई बात हो गई, या एक जो बेटी होती है, बेटी और पापा के बीच की जो बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसको कवर करने का स्टोरी, उसके ऊपर जो स्टोरीज़ हैं, जो वार्ताएं लिखी गई हैं, उसको दिखाने की एक प्रयास किया गया है, जिसमें से एक फोटोग्राफर की नज़र से एक माता की ममता क्या होती है। क्योंकि हम जब देखते हैं माँ को तो वो माता की ममता हमको अलग दिखती है, लेकिन जब एक फोटोग्राफर वो फोटो क्लिक करता है और फोटोग्राफ्स के ऊपर से आपको एक माता की ममता के बारे में जब बात करनी होती है तो बात अलग हो जाती है। क्योंकि फोटोग्राफ्स कभी कभी ऐसे होते हैं तो वो खुद बोलते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब वो फोटोग्राफ देखने के बाद एक स्टोरी दिमाग में आती है तो वो स्टोरी है। फिर एक ऐसी भी अंदर एक स्टोरी है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहता था, एक गलत जगह जाके फंस गया और फिर उसकी बेटी ने उसको वहाँ से कैसे बाहर निकाला। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर करने का एक प्रयास किया गया है। और सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें से काफ़ी ऐसी हैं जो रियल लाइफ में मैंने देखी है या मैंने सुनी है या मैंने उसको अनुभव किया है। वो सारी जो चीज़ें हैं उसको भी मैंने इस बुक में प्रकाशित शब्दों में डालने की बात की है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वडोदरा में न्याय मंदिर करके एक विस्तार है, जहां पे पहले कोर्ट चला करती थी वडोदरा में। अभी कोर्ट का विस्तार बदल गया है, कोर्ट अलग जगह चली गई है, लेकिन वो जो न्याय मंदिर था वो सर सयाजीराव के गायकवाड़ के टाइम से वहां पे कोर्ट चलती थी। तो वो कोर्ट अपनी आत्मकथा किस तरीके से दिखाती है कि मैंने यहाँ पे जो समय बिताया, मेरी कोर्ट में जो केस चले वो केस किस तरीके से थे। यानी उसमें मैंने लिखा है कि न्याय मंदिर एक हतु न्याय मंदिर, तो उसमें जो केस चले, काफ़ी अच्छे अच्छे केस चले थे, उसके बारे में जो बात वहाँ पे थी वो खुद न्याय मंदिर अपने आप बता रहा है कि कैसी हालत थी और क्या हो गया। जो टाइटल है आपकी बुक का अंधारी रात नी बात, तो इस टाइटल के पीछे की क्या कहानी है, क्या मैसेज है इसके पीछे? अंधारी रात नी एक बात जो टाइटल है, वो टाइटल के पीछे की कहानी ये है कि एक दिन मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अंधेरा रोड था और एक चाय की दुकान थी, आजू बाजू कुछ नहीं था। वहाँ पे एक ऑटो वाला आया और ऑटो वाले ने, क्योंकि वो रोज़ वहाँ आता था, चाय वाले के साथ उसकी दोस्ती अच्छी थी, तो एक बात ऑटो वाले ने चाय वाले को बताई। एक लड़की कहीं पे फंसी हुई थी, आई उसके पास, उसने जिस तरीके से लड़की ने मदद की, लड़की क्या प्रॉब्लम में फंसी थी, वो सारी बातें उसने की थी चाय के स्टॉल वाले के जो था उसके साथ। लेकिन मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था, तो उसी को एक रूप देने का प्रयास किया है कि स्टोरी के रूप में लोगों तक पहुँचाने की बात की है। अब आखिर में आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अगर वो इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से वो पढ़ सकते हैं, कहाँ से बाय करेंगे? अहमदाबाद का पब्लिकेशन हाउस है ZCAT पब्लिकेशन। आप गूगल में डालोगे ZCAD.com, ZCAT पब्लिकेशन का सर्च करोगे, वहाँ पे ऑनलाइन आप ये बुक खरीद सकते हो, आपके घर पे कुरियर में आ जाएगी। और आगे के एक सप्ताह के अंदर आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ भी ये पुस्तक अवेलेबल है। इन दिनों हम नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन रिश्तों की डोर एक ऐसी डोर है जो धीरे धीरे करके पीछे छूटती चली जा रही है। हमें लग रहा है कि हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन सबसे कीमती चीज़ होती है रिश्ते। जो रिश्ते हम समझना भूल गए हैं, रिश्तों को निभाना भूल गए हैं। और इसी पर एक किताब लिखी है रवि इला भट्ट जी ने। अब उनसे सीधे सीधे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी किताब में उन्होंने क्या मैसेज लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपकी किताब के बारे में दर्शकों को बताइए। मेरी किताब जो है लेसन्स ऑफ रिलेशन, वो कई मायनों में मैंने नई पीढ़ी के ऊपर फोकस करके लिखी है। क्योंकि हम नई पीढ़ी की बात करें
जो जिसको हम जेन जी बोलते हैं, या फिर अब जो पीढ़ी आएगी जो जेन अल्फ़ा है जो अभी जी रही, और अब तो ये 2025 से जेन बीटा भी शुरू हो गई। तो ये जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो रिलेशनशिप है थोड़े क्लमजी है। या तो उनके पास क्लैरिटी नहीं है, या फिर वो कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। तो वो खुद घूमते रहते, उनको पता नहीं है क्या करना है। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने, उनको थोड़ा गाइड करने, और एक सोसाइटी में जो हम योगदान दे सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट, उससे थोड़ा आगे बढ़ के मैंने ये सोचा है कि किताब के थ्रू, कुछ आर्टिकल्स के थ्रू लोगों के पास पहुंचा जाए, ताकि लोगों को कुछ अच्छा पढ़ने का और कुछ अच्छा सोचने का मौका मिले। जैसा इन्होंने कहा कि जेन जी जो नया जनरेशन है वो कमिटमेंट के इश्यूज से गुजर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है एक और परेशानी है, बहुत कॉमन है, जो हर माता पिता शिकायत करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी सुनते नहीं हैं। पेरेंट्स के साथ में भी कहीं ना कहीं रिश्ते अब बहुत ज़्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। जो इज्जत पहले दी जाती थी अब वो नहीं रही है, वो भी काफ़ी बहुत कॉमन इशू हो गया है। तो क्या इस इशू को भी आपने अपनी किताब में दर्शाया है सर? जी बिल्कुल। ये जो आप बात कर रहे हैं जनरेशन गैप, वो मैं शायद मानता हूँ कि वो पीढ़ियों से चला आया है। हमेशा ऐसा रहा है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी पसंद नहीं है, पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी पसंद नहीं है। लेकिन एज ए मिलेनियल मैंने ऐसा प्रयास किया है कि मैं पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में ब्रिज बन जाऊँ। तो मैंने जो अपने माता पिता से सीखा है और जो मेरी बेटी फेस कर रही है, तो उन दोनों जनरेशन के बीच में मैं ऐसा काम करूं कि उनको कनेक्ट कर सकूं। तो कुछ अच्छे उसूल उनके थे, कुछ पुरानी पीढ़ी के अच्छे ख्यालात थे, उनका कमिटमेंट था, उनकी क्लैरिटी थी, तो वो मैं नई पीढ़ी को पहुंचा सकूं। और नई पीढ़ी की जो लाइवलीनेस है, वो खुल के जीते हैं, तो वो मैं शायद पुरानी पीढ़ी को ये किताबों थ्रू बता सकूं कि आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हैं। आप बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल, लेकिन लाइफ जीना नहीं छोड़ना चाहिए। एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन आप उसको एंजॉय कीजिए। अब ये नया जो दौर है उसमें थोड़ा खुल के आगे आइए। तो अब दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए कि वो कहाँ से इन किताबों को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये किताब आपको मिलेगी ZCAD पब्लिकेशन से। ZCAD publications.com पे आप जाइए, वहाँ पे सारी किताबें अवेलेबल है। और दूसरे एक हफ्ते में, बिल्कुल शायद एक हफ्ते से भी कम टाइम में, ये बड़ौदा के सारे अच्छे और जो अग्रगण्य बुक स्टॉल्स है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी थोड़ी देर में आ जाएगी, मुझे लगता है शायद 10 या 15 दिन। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आप पब्लिकेशन हाउस की वेबसाइट से ले सकते हैं, बुक स्टोर्स में भी ले सकते हैं। गुजरात के भावनगर में ट्रैफिक पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश मामले किन्नरों सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भावनगर शहर के भिड़भंजन चौक पर ट्रैफिक नियमों को लेकर हुए हंगामे का मामला सामने आया है। 2 पहिया वाहन चालक से दस्तावेज मांगने पर न केवल विवाद बढ़ गया, बल्कि किन्नरों ने तालियां बजाकर और हंगामा करके पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। अंततः पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस समय हुई जब ट्रैफिक पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालक विशाल रमेश भाई चुडासमा को रोककर लाइसेंस और अन्य दस्तावेज मांगे। दस्तावेज पेश करने के बजाय उसने किसी को फोन कर मौके पर बुलाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा जुर्माना भरने की बात कहने पर भी उसने इसे नकार दिया। इसी बीच किन्नर अनीता कुंवर नायक और संगीता कुंवर मौके पर पहुंच गई और सड़क पर तालियां बजाकर शोर मचाने लगी। इससे मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। किन्नरों ने पब्लिक के लोगों से वीडियो बनाने को कहा और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। गुजरात के वडोदरा के कोठी सलाटवाड़ा रोड पर हादसा हुआ, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। वडोदरा के वाड़ी क्षेत्र में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ओपन सपोर्ट गार्बेज कलेक्शन गाड़ी और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए और घायलों को इलाज के लिए तत्काल 108 एम्बुलेंस द्वारा SSJ हॉस्पिटल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने पर कारेलीबाग पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने ओपन सपोर्ट गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। હું મારું કામ કરી જ રહ્યો હતો રાબેતા મુજબ, અને પાછળથી ધડામથી અવાજ આવ્યો, હું પલટીને જોયું તો આ એક્સિડન્ટ થયેલું હતું। VMCની ગાડી છે અને 2 બાઇક સવાર હતા, એ VMC વાળાએ એમને અડફેટમાં લઈ લીધા। હવે એ તો મને બહુ એકચ્યુઅલી વધારે નથી ખબર, હું મારા કામમાં વ્યસ્ત હતો, અવાજ આવ્યો એટલે હું પલટ્યો ત્યારે આ થઈ ગયું હતું। સલાટવાડા કોઠી રોડ।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात का वडोदरा शहर जहां अलग अलग इलाकों में अलग अलग डेवलपर्स अपनी अपनी साइट्स डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई कोई साइट कभी कभी विवाद में भी पड़ जाती है। और ऐसी ही एक साइट समा में GIPCL सर्कल निकट आकार इंफ्रा की है, जिसका मुद्दा हाल ही में सामान्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक पराक्रम सिंह जाडेजा ने उठाया है कि यहाँ बिल्डर की अनुमति चिट्ठी रद्द होने के बावजूद पूरा निर्माण कर दिया गया है, स्लैब भर दिया गया है और ये जो जमीन है वो लगातार विवाद में बनी हुई है। पिछले कई वक्त से यहाँ रीडेवलपिंग का काम चल रहा है, लेकिन जमीन विवाद के चलते काम को फिलहाल रुकवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक पराक्रम सिंह जाडेजा का कहना है कि आकार इंफ्रा के जो बिल्डर हैं वो अवैध रूप से यहाँ इमारत का निर्माण कर रहे हैं और गलत अनुमति चिट्ठी के आधार पर ये निर्माण किया गया है और अनुमति चिट्ठी रद्द करने के बावजूद बिल्डर द्वारा स्लैब भर दिया गया है। ये आरोप
भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक पराक्रम सिंह जाडेजा ने डेवलपर पर लगाए हैं। आकार इंफ्रा नामक ये डेवलपिंग साइट समा में GIPCL सर्कल निकट निर्माणाधीन है। सामान्य सभा में अक्सर नगर सेवक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं कि अधिकारी इतनी मनमानी करते हैं कि बिल्डरों के साथ मिलीभगत कर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बार बार VMC द्वारा हर 15 दिन पर नोटिस दिया गया है, ये भी कहना है, और उसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुका है। जब भी यहाँ निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की जाती है तो ये भी आरोप पराक्रम सिंह जाडेजा ने खुद लगाया है कि यहाँ बाउंसर गाली गलौज करते हैं और मारने की धमकी देते हैं, और ऐसे में ये काम जारी पिछले कई वक्त से रखा गया है। फिलहाल काम बंद कराया गया है, लेकिन सभा में ये जो मुद्दा उठा है उसकी तफ्तीश तो होना जरूरी ही है। समा में GIPCL सर्कल निकट जो आकार इंफ्रा इमारत बन रही है वो खटाई में है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक पराक्रम सिंह जाडेजा ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, और यहाँ सोसाइटी से सटे हुए इस बिल्डिंग के निर्माण से आपत्ति जताई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी परिमल पटनी, डेप्यूटी TDO, ये सारे ही लोग यहाँ मुआयने के लिए पहुँचे हैं कि आखिरकार ये जो सड़क जा रही है सोसाइटी वालों की उसमें क्या परेशानी है और बिल्डर द्वारा यहाँ कितना अतिक्रमण किया जा रहा है। सर, आज आकार इंफ्रा का आज विजिट करने आए हैं आप, इसमें क्या ये मामला खटाई में क्यों है, क्या है पूरा मामला? नहीं, एक्चुअली ये सोसाइटी इंटरनल का इन लोगों के बीच का एक रोड का है कि इशू के, हाँ हमारा रोड मिल नहीं रहा है, वो इसके लिए भी अभी उसका सब चेक कर रहे हैं। सर, पिछले कई दिनों से चेक चल रही है, आप लोगों ने अनुमति चिट्ठी दी है, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया है, तो क्या अनुमति चिट्ठी देने में कहीं दिक्कत आई है, कोई गड़बड़ हुई है, प्लान पास करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वही चेक करने के लिए हम लोग आए अभी, वो इसीलिए तो ये विजिट रखा हुआ है कि चलो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। सोसाइटी वालों का क्या कहना है सर कि ज़मीन उनकी है? सोसाइटी वालों का ही है कि ये उनका 7.5 मीटर का रोड है और उनका इंटरनल रोड है, वही है इनका इशू। सर, पिछले कई वक्त से ये आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन जब अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब आवाज़ उठाई है तब कार्रवाई हो रही है। उससे पहले कॉरपोरेशन उसको पूरी अनुमति दे चुकी है और आधा स्लैब भर गया है, उसके बाद अब ये मामले की जाँच हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा मानते हैं आप? वही चेक करने के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ रिपीटेडली कि उसके लिए तो हम लोग आए हैं अभी देखने लिए। चलिए, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में अनुमति देने के लिए कुछ गड़बड़ी की है। बिल्डर का क्या कहना है कि उनका नक्शा सही है, सोसाइटी वाले ये कह रहे हैं कि नक्शा उनका सही है। आखिरकार कहाँ धांधली हुई है और कहाँ गड़बड़ी हुई है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि अनुमति चिट्ठी देने के बाद ही ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों और पदाधिकारियों पर भी सीधा सीधा सवाल उठ रहा है। वडोदरा के समा में GIPCL सर्कल निकट आकार इंफ्रा नामक एक रीडेवलपिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिस पर सभा में भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक पराक्रम सिंह जाडेजा ने आपत्ति जताई थी, और उनका कहना था कि यहाँ गोकुल धाम जो सोसाइटी है, 44 घर है, वहाँ के सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है और उनके रास्ते को रोककर ये जो पूरी इमारत का निर्माण हो रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले कुछ स्थानीय निवासी और यहाँ के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की ये समस्या है। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, ये सोसाइटी कितने सालों से है? 88 से जी। और इससे पहले यहाँ पर एक बिल्डिंग थी? हाँ, पुरानी 2 बिल्डिंग थी, आगे 2 अपार्टमेंट थे जी, यश कॉम्प्लेक्स और शरद कॉम्प्लेक्स जी। तो अब उसे हटाकर जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर जो बिल्डर ने हमारे साथ पहले एग्रीमेंट जो किया था वो उसके ऊपर वो उसके बातों पर कायम नहीं है और सब बदल गया है। जो हमको कमिटमेंट किया हुआ कि ये करके दूंगा, कुछ भी नहीं उसने नहीं किया, और हमको उसका क्या क्या न्यूसेंस झेलना पड़ रहा है, इन द सेंस कि हमारा डेंजर ऑफ लाइफ है, क्योंकि जो उसने क्या 30-30 फुट का खड्डा किया हुआ है विदाउट एनी शीट पाइलिंग,
शीट पाइलिंग पहले कोई भी 30 फुट का खड्डा करना होता है एडिशन टू रोड या कोई बिल्डिंग के बाजू में, पहले शीट पाइलिंग करते हैं, उसके बाद में आपको एक्सकेवेशन करना होता है। तो इसने तो बिना सीधा वर्टिकल क्या 30 फुट का एक्सकेवेशन किया हुआ अपना बेसमेंट के लिए। और आपके सोसाइटी में आने वाली जो सड़क है वो भी इस नक्शे में बाधित हो रही है, यानी वहाँ पर भी कुछ निर्माण हो रहा है? जी, उसके अंदर उसने अपना बेसमेंट दिखा दिया है और क्या कहते हैं हमको एग्रीमेंट के करके दिया हुआ है कि आपको ये रोड वापस करूँगा, जबकि उसके अंदर उसने पूरा टोटल उसके बिल्डिंग के नीचे टोटल बेसमेंट उसने पास किया हुआ है, जो कि क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल से 3 फुट ऊपर है। तो हम और उसके नीचे हमारी सर्विसेज वगैरह सब जा रही है, तो सर्विसेज वो भी कैसे सारी अफेक्टेड हो जाएगी, प्लस हमारा रास्ता तो ब्लॉक ही हो गया ना। 3 फुट हम ऊपर से रैंप बना के चढ़ेंगे कि कैसे चढ़ेंगे वो क्लियर नहीं हो रहा अभी। बिल्डर का ये पूरा लेआउट प्लान है, इसके अंदर 2 बिल्डिंग है, विंग ए और विंग बी है। बीच में उसने 6 मीटर का रोड दिखाया हुआ है और इसका ये बाजू में इसने जो कॉमन प्लॉट दिखाया हुआ है पासिंग में, मतलब एक्चुअल में ये कॉमन प्लॉट दूसरे के पोजीशन में है और उसका एफएसआई ये बिल्डिंग में क्लेम कर रहा है। पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि दूसरे के पास पोजीशन है और ये क्लेम कैसे कर रहा है जी। फिर ये आप देखेंगे ये बेसमेंट का मार्किंग है और ये बिल्डिंग कंट्रोल लाइन का ऊपर का जो ग्राउंड फ्लोर से जो उठना चाहिए, मगर ऑन एट साइड देखेंगे तो क्या इनमें कोई फर्क नहीं है। बेसमेंट और क्या कहते हैं ऊपर का ग्राउंड फ्लोर एक ही लेवल में है। प्लस हमारे यहाँ पे मिनिमम 4.6 मीटर का मार्जिन इधर से हमारे बाउंड्री से दिखा हुआ है, मगर उसका तो कॉलम सट के आया हुआ है हमारे बिल्डिंग को, इसलिए बाउंड्री लाइन को जी। और ये जो आपकी सड़क है जो आपकी सोसाइटी में एंटर होती है, वहाँ क्या वहाँ भी बंद कर दिया गया है जी? ये सड़क का हमारी क्या ओरिजिनल क्या कहते हैं, ये यहाँ पे सड़क थी एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग, हमारी यहाँ पे सड़क आती है, मगर बिल्डर ने ये इधर चल रही ये थी तो हमारी सर्विसेज वगैरह यहीं से पास हुई है, तो बिल्डर ने ये वाली हमको 6 मीटर की सड़क दिखा दी है, मगर ओरिजिनली पास हमारी ये यहाँ पे 7.5 मीटर की सड़क हुई है। उसने वो भी शिफ्ट कर दी है। प्लस और उसके अंदर क्या कि हमको एग्रीमेंट करके दिया है कि इसके अंदर जो ये पूरा रोड है, रोड आपको क्या कहते हैं जितने भी 18 महीने के बाद वापस कर देंगे, मगर उसने क्या किया पूरा बेसमेंट है, आप देखेंगे पूरा बेसमेंट इसने दिखा दिया है। बेसमेंट ये ग्राउंड लेवल से 3 फुट ऊपर है, तो हमारा तो इसलिए जाना ऐसा हो गया कि पहले 3 फुट ऊपर चढ़ेंगे, फिर सीधा उतरेंगे, फिर नीचे 3 फुट नीचे उतरेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अंदर से हमारी सर्विस गैस ड्रेनेज जितनी भी सर्विस सब इधर से जा रही है, वो कहाँ से सेट होगा वो भी नहीं है। चलिए एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार गोकुल धाम सोसाइटी के लोग किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सर, यहाँ काफ़ी सालों से आप लोग रह रहे हैं और अब ये जो इमारत का निर्माण हो रहा है उससे सोसाइटी के लोगों को क्या परेशानियाँ आ रही है? दोनों इमारत का जब डिमोलिशन हुआ तो सोसाइटी की तरफ धूल नहीं उड़े, सोसाइटी के लोगों के घर की तरफ सेफ्टी प्रिकॉशन रखे। 80% of safety precaution has been denied to the society, and when we complained to them, they said ki we can't do anything. Then they have excavated. We said ki you please make the retention wall. They said ki we are too busy, we cannot talk to you. We have even in return to first the builder's office. They refused to take whole monsoon. Both the dig out area is full of water, and it causes once they have not drained it out, so there is a problem of mosquito. This leading of our adjacent road, and you have seen this road has been collapsed. इस मामले की शिकायत आपने वडोदरा महानगर पालिका में की है? Yes. क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने कहा हम देखते हैं, हम एक्शन लेते हैं। इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं यहाँ के? The very first thing is when you see it's a common language. If you can share the camera there, you see the pillar coming over there, which is just crossing our road limits of the road. Then whatever my प्रमुख said that this kind of extension of the जो extension कर रहा है वो completely illegal है। शुरुआत में हमने बात किया था, ये जो जैसे कह रहा था कि वैसे करेंगे, ऐसा होगा, आपको वहाँ से ये होगा करके कुछ भी ऑनर नहीं किया आज तक, अभी तक नहीं किया। ऊपर से क्या है, हमारे इजाज़त के बिना कुछ बोला हुआ नहीं, बात हुआ नहीं, तो उसके पहले ये लोगों ने कंपाउंड वॉल तोड़वा दिया, फिर वहाँ पे कंपाउंड वॉल एक्सटेंड करें, एनक्रोच करके वो जो हॉल्स अब जो पिलर और जो खड़ा कर रहे हैं वो लोग, और इसके पीछे 2 मीटर का कैविटी है, वहाँ पे हम लोगों ने पत्थर रखा हुआ है ताकि कोई भी गाड़ी वहाँ जाएगा ना सीधा वो दब जाएगा, अंदर जाएगा। सो सीवियर केस ऑफ एक्सीडेंट है,
कंप्लीट लैक्सिटी है, टोटली वायलेशन, पूरी तरह वायलेशन है। और हमारे साथ वो कोऑपरेट करने को या बात करने का या पहले वो ग्राउंड लेवल पे आने के लिए तैयार भी नहीं था। हमने जो जिस तरीके से ऑब्जेक्शन किया था, जो ये लोगों ने बात किया था, उसमें सब वो सहमत होता नहीं था। कॉरपोरेशन वाले भी इनिशियली हेसिटेंट ही था, बिल्कुल ही हेसिटेंट था। फिर बाद में जब बात आगे बढ़ा तभी आके ये लोग लाइन पे आ रहे कि इतना सीवियर वायलेशन जो रोड, इधर कितना संविधान है, रेरा है, सब कुछ है। जहाँ हम लोग को कंप्लेंट डालना था सब जगह में डाल दिया था। लेकिन धीरे धीरे अभी जाग रहे हैं, अभी देखते हैं हमारा इनका एक्शन प्लान क्या होगा, कैसे हमको सोल्यूशन होता करके। लेकिन बिल्डर का कहना है कि आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, ये जो आपके बालकनियां बनी हैं वो अवैध है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, ये तो हमारी सोसाइटी का इंटरनल मामला है। वो बिल्डर खाली काउंटर कर रहे हैं, हमें उससे आज तक 25 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम हमारे जो को ओनर्स है, जो कलीग्स है, उनके साथ हम बात करके उसको भी हम करवाएंगे। इसका 7.5 मीटर का हमारा रोड है, वो पूरा रोड हमको लेना ही है, वो तो ले ही लेंगे वो। लेकिन उनके साथ कोई संबंध नहीं, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है। इंटरनल अगर घर के अंदर हमारा ये पूरा सोसाइटी के अंदर कुछ भी डाइवर्शन हो, एक्स्ट्रा एक्सकवेशन हुआ है, एक्स्ट्रा काम हुआ है, प्रोट्रूडिंग हुआ है, वो सब हम निकाल देंगे। वी आर टेकिंग आउट, वी आर टेकिंग एक्शन ऑन दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। बट वो बिल्डर के साथ उनको कोई लेन देन नहीं है। हमारे पेरिफेरी है, हमारा कंपाउंड वॉल बिना परमिशन का तोड़वाया गया था, और उसमें जो भी देखो ये क्लियरेंस, ये सर जो बोल रहा था क्लियरेंस की बात जो कर रहे हैं, कॉमन वॉल से जो he has been asked, his building permission has been suspended. बिल्डिंग परमिशन रद्द करने में या स्थगित करने में, उसके बावजूद उसने अभी बाउंड्री वॉल तोड़ी। यहाँ से वहाँ तक की बाउंड्री वॉल हिल भले रही थी, पर तोड़ने का काम अभी उसने हफ्ते भर पहले किया। क्या बिल्डर की ओर से आप लोगों को कुछ डराया धमकाया भी जा रहा है? हाँ, बीच में जब इन्होंने काम चालू किया था तो मैं और मेरा बेटा, हम लोग यहाँ से, मेरा ये पहला ही घर है यहाँ पे, तो उनको बोलने के लिए गए थे। तो उसने मेरा फैट भी पकड़ा और पुलिस को भी बुलाया था, और पुलिस ने भी आकर के कोई खास कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोला आप लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो। तो ये उन लोग के साथ भी मिल जाते हैं और हमारे को ज़बरदस्ती धमकाते भी हैं। प्लस इसके अलावा सबसे मेन बात क्या है, मेरा घर सबसे पहले ही पड़ता है यहाँ पे, और इन्होंने 8 माले का परमिशन दिया है, कॉरपोरेशन से लिया है। कॉरपोरेशन ने कभी हमारे को आके ये पूछा नहीं कि भाई आपको 8 माले का परमिशन यहाँ मिल रहा है, और इन्होंने अर्थक्वेक वगैरह के ये कंस्ट्रक्शन किया है। कल उठ करके कभी भी अर्थक्वेक आता है और ये बिल्डिंग गिरेगी तो हम लोग तो, हमारे लिए तो जान जोखिम में है। तो ये चीज़ हमने उनसे हाईलाइट की थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, ये जो कंपाउंड वॉल है, उन्होंने वहाँ से 3 नक्शे हैं, कॉरपोरेशन के पास भी 3 नक्शे हैं, जिसमें उन्होंने 3 फुट एक्स्ट्रा हमारी सोसाइटी के अंदर, जो रोड पे हम 30-35 साल से रह रहे हैं, उसमें उन्होंने 3 फुट अंदर मेरी जगह है ऐसा करके बिल्डर ने बताया है। लेकिन 30-35 साल से हम रह रहे हैं, वहाँ पे गटर लाइन है, हमारा सीवेज लाइन है, और पानी का लाइन सब कॉरपोरेशन ने दिया है। जब अप्रूव किया था तब कॉरपोरेशन ने भी नहीं देखा था। आज 30-35 साल के बाद आके तुम बोल रहे हो कि भाई ये अवैध है या अतिक्रमण किया हुआ है, ये टोटली गलत बात है। अब यहाँ सीधा सीधा बहुत बड़ा सवाल वडोदरा महानगर पालिका पर भी उठता है कि सालों से एक सोसाइटी है, उसका मार्किंग सही तरीके से हुआ कि नहीं वो तो जांच का विषय है। लेकिन अब जब बिल्डर को अनुमति चिट्ठी दी गई, वो किस हिसाब से दी गई, किस हिसाब से नक्शा पास किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसकी जाँच होनी चाहिए। अनुमति चिट्ठी रद्द की गई क्योंकि इस पर सवाल उठा, उसके बाद भी बिल्डर ने स्लैब भर दिया। यानी डेवलपर्स जो है वडोदरा में इस कदर बेफाम होते जा रहे हैं कि अपनी मनमानी चला रहे हैं, और उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों की सीधी सीधी मिलीभगत भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आ ही सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पराक्रम सिंह जाडेजा ने सभा में ये मामला उठाया है। अब इसमें वीएमसी के अधिकारी जांच भी कर रहे हैं। जांच में उनकी गलती सामने आती है, सोसाइटी की गलती सामने आती है, या बिल्डर की गलती सामने आती है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो तो अच्छा है। तो यहाँ रहने वाले जो 44 परिवार है, जिसमें सैकड़ों लोग सालों से रह रहे हैं, उन्हें शायद कोई फायदा हो। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। वडोदरा में इन दिनों लालबाग ब्रिज और जितलपुर ब्रिज बंद किया गया है। वहीं VNM टीवी के रियलिटी चेक में चौंकाने वाली बात सामने आई है। वडोदरा शहर में इन दिनों सड़क और ड्रेनेज सुधार कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण लालबाग ब्रिज और जितलपुर ब्रिज को 1 महीने के लिए वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। जितलपुर ब्रिज पर VNM टीवी के द्वारा किए गए रियलिटी चेक में ये सामने आया है कि ब्रिज पर तेज गति से काम चल रहा है, लेकिन ब्रिज पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। जब तापमान 29 डिग्री तक पहुंच रहा है, कर्मचारियों को न तो दस्ताने दिए गए हैं और न ही मास्क। ये चिंता का विषय है कि अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा।
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीद दिवस पर 1 मिनट का मौन रखा गया। आज देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वडोदरा शहर की नवीन कलेक्टर कार्यालय में 11 बजे शहीदों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखा गया। जिला प्रशासन ने इस समय सभी नागरिकों से अपील की थी कि वे जहां भी हों इस समय के दौरान 1 मिनट का मौन रखें। सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों में भी 1 मिनट का मौन रखा गया। वहीं 10:59 से सायरन बजाकर ये मौन पालन शुरू किया गया और 11:02 पर सायरन की आवाज से इसे समाप्त किया गया। महात्मा गांधी ना निर्वाण दिन निमित्ते जे प्रोटोकॉल से प्रमाणे बराबर 11 वागे कलेक्टर कचेरी में कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी श्री, निवासी अधिक कलेक्टर श्री, अन्य डेप्यूटी कलेक्टर श्री, मामलतदार श्री અને સ્ટાફ, માહિતીના નાયબ નિયામક શ્રી વગેરેની ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રપિતાને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા 2 મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવ્યું। जर्मनी से ऑपरेट होने वाली फौजी गैंग का भगोड़ा आरोपी वडोदरा के इनऑर्बिट मॉल से गिरफ्तार हुआ है। कल 29 जनवरी को मॉर्निंग में पंजाब के बटला जिले के पुलिस अधीक्षक श्री का मैसेज मुझे मिला था कि वहाँ पे लोहड़ी के दिन फायरिंग और एक्सटॉर्शन का एक एक्यूज जो है वडोदरा में प्रेजेंट है, तो उसको एप्रीहेंड करने के लिए हेल्प उन्होंने डिमांड किया था। तो उसमें हमने यहाँ पे अलग अलग टीम बनाई और हमने लाइव लोकेशन के आधार पर CDR एनालिसिस के आधार पर उसको हमने जीरो डाउन जो पूर्वा एरिया है वहाँ पे इनऑर्बिट मॉल है वहाँ पे किया था। और इनऑर्बिट मॉल में जब हमने जाके इन्वेस्टिगेट किया तो वो अपना बेस बदल कर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था शॉप के बाहर। तो वहाँ पे हमने उसको कॉर्डन किया और फिर उसको हमने अरेस्ट किया वहाँ से। 13 जनवरी को जब लोहड़ी के दिन उसने वहाँ पे फायरिंग किया, उसके बाद वो 8 दिन तक भागता फिरता रहा और 22 तारीख को वो पंजाब से यहाँ वडोदरा में आया। पंजाब में वडोदरा आने के बाद उसने उसके जो लोकल यहाँ पे भाई थे उसको कांटेक्ट किया, लोकल जो गांव के जान पहचान के लोग थे उनको कांटेक्ट किया और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तरीके नौकरी उसने यहाँ पे मिली। और यहाँ पे पिछले 2 दिन से ही यहाँ पे इनऑर्बिट मॉल पे वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहा था। जैसा कि मुझे बटला पुलिस ने बताया कि जीवन फौजी गैंग के इंस्ट्रक्शन पर ही काम कर रहा था। इनफैक्ट जिस पे फायरिंग किया था उन्होंने डेरा गुरु नानक करके जगह है वहाँ पे बटला जिले में, वहाँ पे उन्होंने जीवन फौजी की गैंग के कहने पर ही उन्होंने फायरिंग किया था और वो भी लोहड़ी के दिन किया था। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इश्यू बना था ये। तो उनकी पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट पे हमने यहाँ पे स्विफ्ट एक्शन एकदम झड़पी कार्रवाई करते हुए हमने उसको बहुत ही कम समय में पकड़ लिया। गुजरात का सूरत शहर जो कि दुनिया का डायमंड हब माना जाता है, यहाँ के व्यापारियों को बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट 2025 को लेकर सूरत के डायमंड उद्योग की बड़ी उम्मीदें हैं। डायमंड एसोसिएशन ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है, जिससे मंदी के दौर से गुजर रहे हीरा व्यापारियों और रत्न कलाकारों को राहत मिल सके। मंदी के माहौल में रत्न कलाकारों को राहत देने और उनके रोजगार को सुरक्षित करने के लिए डायमंड उद्योग से जुड़े संगठनों ने सरकार से आर्थिक सहायता और योजनाएं लागू करने की अपील की है। અમારી સરકાર પાસેથી એક જ અપીલ માંગણી છે કે અહીંયા ડાયમંડ બુર્સ અત્યારે કાર્યરત થઈ ગયું છે, પરંતુ અહીંયા તમામ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ અમુક કન્ટ્રીની ચાલુ નથી થઈ, જેવી કે હોંગકોંગ છે, આફ્રિકા છે, બેલ્જિયમ છે। આ તમામ ફ્લાઇટ અહીંયા કનેક્ટિંગ થાય તો જેથી કરીને બહારના કસ્ટમર આવે તો અહીંયા નાનાથી લઈને મોટા ઉદ્યોગકારીને બધાને ફાયદો થાય, તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી આગળ ગ્રોથ કરે તો તમામ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ ચાલુ થાય એ અમારી માંગણી છે। સરકાર દ્વારા 1 ફેબ્રુઆરીએ જ્યારે બજેટ આવી રહ્યું છે ત્યારે સરકારશ્રીને સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન વતી અને ટ્રેડ વતી હું વિનંતી કરું છું કે આ બજેટની અંદર ખાસ એક આર્થિક પેકેજની યોજના જાહેર કરવામાં આવે, કારણ કે 1.5-2 વર્ષથી જે ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંદીમાંથી પસાર થઈ રહી છે ત્યારે અત્યારે ખાસ રત્ન કલાકાર હોય કે મેન્યુફેક્ચર હોય, ટ્રેડર હોય, એક આર્થિક પેકેજની જરૂર છે। ત્યારે જો એક આર્થિક પેકેજની જોગવાઈ કરવામાં આવે તો 100% ઇન્ડસ્ટ્રીને એક બૂસ્ટર ડોઝ મળ્યો ગણાય છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ભવિષ્ય માટે
એક આગળ કાર્ય કરવા માટે, કામ કરવા માટે અને ધંધાને આગળ ધપાવવા માટે સારું ગણાય છે.